So hello students, welcome to EduTap. In today's video, we are going to talk about descriptive English, which is a very important component for the phase 2 of NABARD grade A examination. And in this video, we will be focusing on every dimension of descriptive English so that you can prepare this component with 100% confidence and 0% doubt. But first, let's understand about the phase 2. So phase 2 of your NABARD examination will be of 200 marks, out of which descriptive English will be of 100 marks. To get this 100 marks, you will have to attempt 3 questions, right? You will have to attempt these 3 questions, and how many time you will get to do this? 90 minutes. This time will be cumulative time. That means it will not be divided ki okay, one question you need to do in 30 minutes, then next is in 30 minutes. No. The time is in your hand, division you can do accordingly, right? Now, ये 3 question क्या होंगे? So these 3 question ideally and majorly these are essay prescient letter only. ज्यादातर केस यही रहता है. This trend has been followed again and again by NABARD, but sometimes, yes, sometimes along with letter they can give you an option to attempt any report. तो option में आपको report मिल जाएंगी. That means 2 letter and 1 report में से आपको एक question करना होगा. This is the trend. And with Prezi also sometimes they give reading comprehension. Rare case है, but yes, since it is mentioned in your notification, you should know that. But major focus of your and today's video will be on essay prescient letter. Once you are done with these 3, then I would recommend you कि reading comprehension और report आप कर सकते हो, but पहले इनको excel करना है आपने, right? Now coming to the basic thing that you need to know. प्रेसी होता है, आपको पता चल जाएगा क्या होता है, but इसके मार्क्स कितने होते हैं, व्हाट विल बी द वर्ड लिमिट, दैट यू नीड टू नो. तो उसके लिए वी विल टॉक अबाउट मार्क्स डिवीजन, वर्ड लिमिट, एंड फॉर द होल डिस्क्रिप्टिव कंपोनेंट हाउ मेनी मार्क्स शुड यू टारगेट to clear the phase 2, also to clear the final merit, that means selected candidates में अगर आपको अपना नाम चाहिए तो वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. एंड टाइम डिवीजन भी आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा अकॉर्डिंगली. बट यहाँ पे why I have not clearly mentioned here the answer of marks division and the word limit. So उसके पीछे I would say कि cause है. The thing is NABARD sometimes change the word limit 50-60 वर्ड लिमिट ऊपर नीचे कर लेता है. सेम दे डू विद मार्क्स. ऑल्दो ऐसे में आई वुड से कि जो मार्क्स वर्ड लिमिट है दैट इज चेंज, बट द मार्क्स जो है वो थोड़े से यूनिफॉर्म रहे. सो इफ आई टॉक अबाउट सिंस 2017, यू कैन सी 2017 में वर्ड लिमिट कितनी थी, 350 वर्ड्स, एंड मार्क्स कितने थे, 40 मार्क्स. 2018 में देखो 300 वर्ड्स, 50 का अगेन चेंज आ रखा है, 40 मार्क्स. देन इफ आई टॉक अबाउट 2020 तो 2019 में पहले टॉक अबाउट अगेन 300 और 40 मार्क्स. देन 2020 में 400 वर्ड्स एंड 40 मार्क्स. और यही सेम ट्रेंड 2021 और 2022 में फॉलो किया था. सो समहाउ यू कैन सी कि आपके एसे के लिए यू नीड टू प्रिपेयर 400 वर्ड्स एंड कितने मार्क्स का होगा, 40 मार्क्स, सिंस यही आगे आइडियल भी रहा है. तो दिस यू विल हैव टू कीप इन माइंड फॉर एसे. तो ऐसे जब भी प्रैक्टिस कर रहे हो, दिस यू विल हैव टू मेंटेन. कमिंग टू योर प्रेसी, तो प्रेसी में तो देखो मार्क्स एंड द वर्ड लिमिट ऑलवेज हैव बीन चेंज, थोड़ा थोड़ा उसमें चेंज आ रहा है, नॉट मेजर चेंजेस. बट येस 2020 इफ आई टॉक अबाउट 20 मार्क्स वर देयर ओनली एंड 150 वर्ड्स वर देयर. देन 2021 में 30 मार्क्स थे, 120 वर्ड्स थे, एंड 2022 में 30 मार्क्स थे एंड अगेन 120 वर्ड्स थे. तो थोड़ा गोइंग बाय द ट्रेंड वी कैन से कि इस साल भी हो सकता है यू विल हैव टू राइट 120 वर्ड्स एंड द मार्क्स विल बी 20 नहीं 30 marks. Okay, so this can be very much followed. However, if you are practicing with the timing speed, ठीक है, आप थोड़ा सा टाइपिंग स्पीड की प्रैक्टिस कर रहे हो, in that case I would recommend you take this as 150 words. राइट, अगर कम आ गए तो लिख लोगे, ज्यादा आए तो भी यू आर प्रिपेयर्ड. दैट शुड बी योर मेंटेलिटी बिहाइंड दिस, राइट. तो दिस इज अबाउट द प्रेसी. कमिंग टू योर लेटर, तो लेटर में भी अगेन द followed suit I'll tell you. तो 2020 में देखो 250 words were there, 20 marks. 2021 में no word limit was there, right? एंड यहाँ पे मार्क्स कितने थे, 30 मार्क्स. देन इफ आई टॉक अबाउट 2022, 120 वर्ड्स ओनली एंड आपके मार्क्स कितने थे, 30 मार्क्स. सो दिस यू विल हैव टू कीप इन माइंड कि यहाँ देखो 250 से 150 वर्ड्स हो गए, इन्हीं के बीच में योर लेटर और रिपोर्ट शुड बी रिटन. प्रैक्टिस भी आपने ऐसे ही करनी है. नाउ यहाँ पे इफ आई हैव टू टेल मार्क्स, तो अगेन देखो 30 मार्क्स यू कैलकुलेट कि 30 मार्क्स का लेटर आएगा आपका, एंड द वर्ड लिमिट यू कैन टेक कि आपको लिखना 150 में है, बट प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस पर्पज के लिए 250 या फिर 200 वर्ड का आप लेके चलो, सो दैट इफ 150 आता है यू कैन एबल टू कट इट अप. अगर 200 भी लिख लेते हो तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग. बट
यस 150 तो आपने प्रैक्टिस करना ही है स्पीड के लिए, नॉट इन द वर्ड टर्म। अगर आप स्पीड की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपने हाईएस्ट जितनी भी वर्ड लिमिट है उसको मेंटेन करके चलना है। यहां से अगर आपको अंडरस्टैंडिंग आ गई तो अब चलते हैं हाउ टू डिवाइड द टाइम, बिकॉज अब हमें आइडिया लग चुका है हाउ मच वर्ड वी विल हैव टू राइट, हाउ मेनी मार्क्स विल बी अलॉटेड टू ईच कंपोनेंट और ईच क्वेश्चन। तो इसके अकॉर्डिंग देखो आपने क्या करना है, तो टोटल 90 मिनट दैट यू विल बी गेटिंग, राइट। तो इसके लिए सबसे पहले एसे के लिए, बिकॉज एसे क्या है आपका सबसे ज्यादा स्कोरिंग कंपोनेंट है, सबसे ज्यादा मार्क्स वहीं पे अलॉटेड है, तो यहाँ पे यू विल हैव 40 मिनट, ठीक है। 40 मिनट में आपने ऐसे टाइप कर देना, इट विल टेक सम टाइम, तो आप टाइम लेके 40 मिनट में ऐसे को कंप्लीट करो। देन फॉर द प्रेसी यू विल हैव 30 मिनट। व्हाई प्रेसी में 30 मिनट? 150 वर्ड्स ही तो लिखने हैं, इतना ज्यादा टाइम क्यों? बिकॉज इन प्रेसी द मेन प्रॉब्लम इज नॉट टाइपिंग, आपको प्रेसी पढ़ के वहां से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है, देन आपने उसके सेंटेंस बनाने हैं, देन यू विल हैव टू टाइप इट, सो अ लॉट ऑफ ब्रेन वर्क विल बी इन्वॉल्व हियर, दैट इज व्हाई प्रेसी के लिए आप 30 मिनट को सेपरेट रख दो। कमिंग टू योर लेटर, सो लेटर के लिए आई वुड सजेस्ट यू कि 25 मिनट यू विल हैव टू कीप। 25 मिनट लेटर में क्यों? देखो लेटर में अगेन यू डोंट हैव टू, आई एम स्टिल टेकिंग कि आपको 250 वर्ड्स लिखने हो, अगर 250 वर्ड नहीं है तो ये मे बी हो सकता है आपका 20 मिनट में हो जाए, 15-20 मिनट्स में, राइट। बट अगेन थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चरिंग के लिए सेंडर्स का एड्रेस बनाना है, आपने सब्जेक्ट लिखना है, तो थोड़ा सा वहां पे फ्रेमवर्क आपको बनाना है, दैट इज व्हाई आई हैव गिवन यू दिस टाइम। इसके अलावा 5 मिनट आई हैव केप्ट बफर, तो 5 मिनट आप लेट्स से कि वर्ड लिमिट यहाँ बढ़ा दी है, यहाँ कम कर दी है, या ऐसे में आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, तो उसके लिए 5 मिनट यू हैव द चॉइस, कहीं पे भी आप लगाना चाहते हो लगा लो, जहां वेयर देयर इज अ नीड। इफ यू फील लाइक कि ओके मैंने सारा पेपर कर लिया एंड आई स्टिल हैव 5 मिनट, यू कैन गो अहेड, चेक योर एसे फॉर ग्रामेटिकल मिस्टेक, चेक योर प्रेसी फॉर ग्रामेटिकल मिस्टेक, दैट यू कैन डू, राइट। तो मार्क्स डिवीजन भी हो गया, पता चल गया कैसे, बट अब ये मार्क्स आएंगे कैसे, हाउ कैन आई इंप्रूव माई स्कोर, और आई वुड से हाउ कैन आई ड्रीम ऑफ स्कोरिंग गुड इन द ऐसे पार्ट। तो उसके लिए आई गिविंग यू सम टिप्स टू डू एंड सम मिस्टेक दैट यू कैन अवॉइड, जिसकी वजह से इनके कॉम्बिनेशन से आई वुड से यू विल बी एबल टू स्कोर अ वेरी गुड स्कोर इन योर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। नाउ कमिंग टू दिस हियर, तो टिप जो नंबर 1 दैट आई लाइक टू गिव यू इज essay practice में always, especially when you are a beginner, you have not written any answer, go for reverse engineering. Now what is this reverse engineering? So what you will have to do, आपने ऐसे वो लिखना है where you have answer already present, तो ठीक है, आपने वो ऐसे लिखना है, उसका क्या करना है, मॉडल क्वेश्चन आंसर को रीड करना है, देन आपने उससे ऐसे को लिखना है, राइट। तो आप ये काम करोगे। नाउ व्हाट विल इट हैपन, देखो व्हेन यू हैव नो कंटेंट, ऑल्दो मैंने आपको 10 एसेज दे दिए हैं, जिसमें से 7 डे चैलेंज आई होप यू आर डूइंग, राइट, कंटिन्यू कर रहे हो, बट अगेन अगर आपके पास मटेरियल है, देखो ऐसे में वन टॉपिक ऑलवेज विल बी देयर, यू विल बी फेमिलियर विद दिस टॉपिक, बी इट रिलेटेड टू द क्लाइमेट, बी इट रिलेटेड टू द इकोनॉमी, बट आपको आता होगा उसमें कंटेंट। द प्रॉब्लम इज यू विल हैव टू एक्सट्रैक्ट आउट कि व्हाट टू राइट एंड मोर इंपॉर्टेंटली व्हाट नॉट टू राइट, व्हाट इज लेस रेलेवेंट, सो उसको भी आपने फिल्टर आउट करना है। तो आई एम एज्यूमिंग इफ लाइक लेट्स से कि आप थोड़े से डिलेमा में हो कि प्रिपेयर करूं या ना प्रिपेयर करूं, और इफ यू आर लाइक कि ओके आई डू नॉट नो वेयर टू स्टार्ट, आप रीड करो ऐसे के और सेम रीड पैसेज में से ऐसे को लिखो, देन कंपेयर इट अगेन, यू विल फाइंड कि ओके ठीक है, दीज पॉइंट आर समथिंग दैट आई कुड हैव रिटन बट मैंने नहीं लिखे, दीज पॉइंट आर समथिंग दैट वर नॉट रेलेवेंट, मैंने अपनी वर्ड लिमिट एग्जॉस्ट कर दी, दैट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग यू विल गेट फ्रॉम हियर। यहाँ पे भी अगर मॉडल क्वेश्चन आंसर पढ़ते हुए यू गेट सम पॉइंट विच कैन बी यूटिलाइज इन मेनी वेज, लेट्स से यू जस्ट रेड की रूरल एरियाज का लिटरेसी रेट कितना है, और इन इंडिया व्हाट इज द एवरेज लिटरेसी रेट। अगर आपका क्वेश्चन आता है एजुकेशन पॉलिसी पे और एनीथिंग रिलेटेड टू द एजुकेशन और स्किलिंग ऑफ यूथ, तो वहां पे यू कैन मेंशन कि वी नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल इंप्रूव आवर रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्सेज, हाउ एजुकेशन में लिटरेसी रेट ये है, वी नीड टू इंप्रूव दिस। तो आप ऐसे करके पॉइंट्स को लिख सकते हो। इफ एनी जेनरिक इन्फॉर्मेशन यू फाइंड इन द रीडिंग मॉडल क्वेश्चन व्हाइल रीडिंग द मॉडल क्वेश्चन आंसर, ट्राई टू मेमोराइज इट, ठीक है, वो आपको लिंक करके चलना है, वो आपको फर्दर आंसर में भी हेल्प करेगा। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। द सेकेंड इज दोज ऑफ यू हु आर वरिड कि मेरे को इंग्लिश अच्छे से नहीं आती है, व्हाट डू आई डू, मैं क्या करूं, आई डू नॉट नो 200-300 रूल्स ऑफ ग्रामर, हाउ कैन आई राइट अ गुड आंसर। सो लेट मी टेल यू, आंसर राइटिंग में देखो, द थिंग दैट यू विल हैव टू डू इज यू विल हैव टू मेक evaluator or the examiner understand your point, so use the language that will help you to make the invigilator understand your point, ठीक है। अगर आप बहुत ही फैंसी इंग्लिश यूज करते हो, उसमें आपने 4 ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दी है, नाउ इट इज नॉट इवन मेकिंग अ सेंस, तो आपको उसमें बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। उसके हो सकता है आपको नेगेटिवली मार्क्स कट जाए,
तो रादर व्हाट यू विल डू, बहुत ही सिंपल वर्ड्स आपने लिखने हैं। एंड अगर आपको बेस्ट आंसर लिखना है, स्पेशली बिगिनर्स के लिए है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले स्मॉल सेंटेंसेस को लिखो, जिससे क्या होगा, आपके पता है जो बीच बीच में ग्रामर जबरदस्ती की यूज करनी करती है, दैट I would say hassle will be gone, and since जो आपका ऐसे है that will be continuously in movement, अगर आप बहुत बड़ी लाइन लिखोगे तो to read the whole line you will have to scroll out a lot, तो बहुत हार्ड वर्क लगेगा, वो टाइम वेस्ट कर देगा आपका। सो दैट यू कैन अवॉइड कि सिंपल स्मॉल सेंटेंसेस को लिखो। एंड नेचुरली व्हेन यू आर राइटिंग स्मॉल सेंटेंसेस, जो ग्रामर आप यूज करोगे दैट विल बी वेरी इजी और वेरी आई वुड से सिंपल ग्रामर होगी, राइट। एंड आपने बहुत ही कॉमनली यूज वर्ड्स लिख के ऐसे लिखना है, राइट। तो कोई जरूरत नहीं है कि बहुत आप फैंसी वर्ड्स को लिख रहे हो कि आप 4 ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दिए, 3 स्पेलिंग मिस्टेक है उसमें, नो। आप इसको फॉलो करो, इट विल गिव यू द बेस्ट आंसर एंड इट विल रिजल्ट इन द बेस्ट स्कोर दैट यू कुड गेट, राइट। तो आपने अपनी नॉलेज को ऐसे दिखाना है कि सामने वाले को समझ में आए व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट विल बी वर्ड लिमिट। स्टूडेंट डू से कि मैम मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वर्ड लिमिट ना मेरी बढ़ रही है, या फिर आई एम नॉट एबल टू मीट द वर्ड लिमिट। तो देखो आई वुड से कि एग्जॉस्ट तो आप वर्ड लिमिट मत करना। इफ इट इज रिटन 400 वर्ड्स, ट्राई टू राइट इन 400 वर्ड्स, उसके ऊपर मत जाना। बट इफ यू आर नॉट एबल टू मीट इट, अगर आपकी जो वर्ड लिमिट है वहां पे यू सी कि 200 वर्ड बोले थे, यू आर ओनली एबल टू राइट 150 वर्ड्स, नो इश्यू गिवन। देखो वर्ड लिमिट इतना मीट करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट इफ योर आंसर इज कंप्लीट दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर आपसे 3 एस्पेक्ट पूछ रखे हैं, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द सोल्यूशन एंड वे फॉरवर्ड, यू शुड बी एबल टू राइट ऑल 3 थिंग्स, दैट शुड बी द टारगेट। इफ यू आर एबल टू डू दैट इन 150 वर्ड्स आउट ऑफ 200 वर्ड, नो इश्यू विद दैट। बट आपका आंसर कंप्लीट होना चाहिए, दैट इज द ओनली आई वुड से कि ओनली बेट। देन of course whenever you are practicing for the essay letter, always go for keyboard. I know beginners के लिए मुश्किल होगा टाइप करना, पहले तो we type like this, but you will have to carry forward it. पहले आप टाइम ज्यादा ले लो, टाइम के लिए चिंता मत करो, बट आपने जो भी करना है from today onwards, you will have to practice on keyboard. Then diversity to win. What do I mean by that? देखो, the letter and essay we are talking about now, you never know कि what kind of essay, although you can like roughly figure it out, but if you keep practicing, let's say I said कि okay, the essay can be philosophical in nature, the essay can be agri related or economics related, and you are like okay, I'm from specialist, I can't do agriculture and economy, although I have given phase 1, but I'll do the philosophy one. आपने बस फिलोसफी वाले बहुत मनी रिलेटेड, पावर रिलेटेड, पीस रिलेटेड बहुत ऐसे लिख लिए, बट यू हैव नॉट प्रैक्टिस एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक्स। नाउ लेट्स से कि दैट ईयर यू डिडंट गेट द क्वेश्चन रिलेटेड टू फिलोसफी। अब क्या होगा, योर 40 मार्क्स आर इन डेंजर, you are in danger to getting kicked out of the competition. So इसको prevent करने के लिए and to score the best, have some option. Whenever you are practicing essay, आपको थोड़े से diverse essays practice करने हैं. That basically will be divided in 3 parts. तो थोड़े से journal essay जो आपके होते हैं, right? जैसे हमें आपको पता होगा कि चंद्रयान was in news, तो चंद्रयान से related, space से related, space technology. Don't go कि मैं जाके पढ़ रहा हूँ चंद्रयान में भाई कौन सा रॉकेट यूज हुआ था, कौन सा फ्यूल यूज हुआ था. No, that you don't need to do. But yes, space से related, how we can improve the space, what are the problem with the space technology. तो इस टाइप की चीजें आपको पढ़नी है space से related. Right, the second would be sports. You do know एशियन गेम्स में हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया. द क्वेश्चन कैन बी देयर रिलेटेड टू कि ओलंपिक में हाउ कैन वी इंप्रूव आवर परफॉर्मेंस, और कि हाउ द स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी इंप्रूव इन इंडिया. इस टाइप के क्वेश्चन आपके जेनरिक से आ सकते हैं, तो इस टॉपिक पे भी आपको थोड़ा सा तैयार रहना है. देन क्लाइमेट, ऑफ कोर्स देखो क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट पे नाबार्ड बहुत फेवरेट टॉपिक है. एवरी ईयर क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन वन फॉर्म और अनदर. इस साल भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. मे बी यू नो, मे बी यू डोंट नो, बट आप इसके लिए प्रिपेयर रहो. ठीक है, इकोलॉजी और क्लाइमेट से रिलेटेड एनीथिंग. Then there is youth. यूथ से रिलेटेड, बीट रिलेटेड टू यू नो आई वुड से कि एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, काफी बार एजुकेशन से रिलेटेड, यूथ की स्किलिंग से रिलेटेड. तो दीज काइंड ऑफ थिंग कैन बी देयर. एंड यूथ आपका हो सकता है बेसिकली टॉपिक का आई वुड से गोल ना हो, बट अराउंड द यूथ द क्वेश्चन विल बी देयर. राइट, तो इसके लिए भी आपको थोड़ा सा प्रिपेयर रहना पड़ेगा. देन कमिंग टू द एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर में आपके ग्रोथ रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एंड इश्यूज रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं. ग्रोथ रिलेटेड हाउ कि हाउ वी कैन इंप्रूव इट टू यू नो मेक इंडिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन. Then there will be what is the issue.
एंड इशू कैन ऑलवेज विल बी लाइक कि क्रेडिट से आपके रिलेटेड इशू आ सकते हैं कि वाई द मैक्सिमम लोन बिलोंग टू नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं. और इट कैन बी कि हमारे जो स्कीम्स है या द वेलफेयर प्रोग्राम दैट वी हैव फॉर फार्मर्स आर नॉट रीचिंग द टारगेटेड ऑडियंस, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, राइट. तो इशू रिलेटेड एंड ग्रोथ रिलेटेड. देन इकोनॉमी में ग्रोथ रिलेटेड एंड सोशल इश्यूज रिलेटेड. इकोनॉमी ग्रोथ लाइक क्या है टोल यू, वो थोड़े से पॉजिटिव भी हो सकते हैं कि लाइक होल इकोनॉमी को लेके, राइट, कि हाउ वी कैन बिकम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, हाउ इंडिया कैन ग्रो एंड सरपास चाइना, इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, ग्रोथ से रिलेटेड और ग्रोथ रेट से रिलेटेड. बट यस, देन थोड़े से प्रॉब्लम से भी रिलेटेड आ सकते हैं. एज यू डू नो कि स्पेशली जब प्रॉब्लम रिलेटेड आएंगे तो दैट विल बी रिलेटेड टू आई थिंक वन कोर इशू. जैसे सेक्टर्स है कि व्हाई इंडस्ट्रियल सेक्टर इज नॉट ग्रोइंग, तो आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चन, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, सर्विस सेक्टर की बूमिंग से रिलेटेड आपका ऐसे आ सकता है. तो दिस टाइप ऑफ प्रिपरेशन यू विल ऑल्सो हैव टू डू फॉर द इकोनॉमी रिलेटेड इश्यूज. देन आता है आपके सोशल इश्यूज. सोशल इश्यूज में आपको पता है वुमेन एम्पावरमेंट, पॉपुलेशन, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, इनकी तो आप तैयारी कर लो. इन्वायरमेंट भी यहाँ पे होता है बट इन्वायरमेंट थोड़ा सा जेनरिक आता है, तो आई हैव केप्ट इट इन द टॉप जनरल वन, राइट. देन कमिंग टू योर लेटर. सो लेटर आपके क्या आते हैं, थोड़े से जो आपके इनफॉर्मल लेटर होते हैं, यूजुअली दे आर बेस्ड ऑन द कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऑल्दो समटाइम एडवाइस पे भी होते हैं, पर ज्यादातर कि योर ब्रदर एंड सिस्टर हैव वॉन दिस स्कॉलरशिप, योर ब्रदर एंड सिस्टर हैव स्कोर्ड दिस मच मार्क्स, गॉट फर्स्ट पोजीशन, तो भाई मनाओ, त्योहार मनाओ. तो these kind of letters are there, so you should try to practice on those lines. Then there will be complaint to editor कि this is the problem कि लाउड स्पीकर बहुत तेज बन रहा है, the roads are not well maintained, the trees are being cut, so these kind of issues. Then suggestion related भी, right, कि suggestion में कि how India can make their youth Olympians, these kind of thing. तो suggestion वो चीज देते हैं कि how we can improve this particular thing. इसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है. इसके अलावा इनफॉर्मल लेटर तो आप देखो इजी होते हैं कंपैरेटिवली, तो फॉर्मल लेटर पे आप थोड़ा सा ज्यादा फोकस करके प्रैक्टिस करो. सो आई होप यहाँ से आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाएगी कि हाउ यू कैन यूज डाइवर्सिटी टू योर एडवांटेज, राइट. नाउ कमिंग टू योर एग्जाम ब्रेन वाइल स्टडिंग. व्हाट डज दिस मीन? तो एग्जाम ब्रेन वाइल स्टडिंग मीन्स कि व्हेनेवर, देखो सबसे पहले तो इन सारी चीजों को प्रैक्टिस करने के लिए, एसे, प्रेसी और लेटर को प्रैक्टिस करने के लिए बेस्ट इज यू रीड द एडिटोरियल. आपको कोई मैगजीन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ लेने की जरूरत नहीं है, यू रीड द एडिटोरियल, राइट. तो आपने एडिटोरियल की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है. Exam brain while studying. What does this mean? देखो, whenever you are preparing for the essay, précis or letter, the best approach would be to go for the editorial. कोई भी न्यूज़पेपर का आप एडिटोरियल उठा लो, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो. So it will give you, I think, होलिस्टिक से आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस दे देता है for the English, right? डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए आपको. अब वहां पे भी when you are practicing ना, एक्टिवली जब आप पढ़ रहे हो, whenever you are reading the lines, you will have to see कि okay, this particular information can be introduction, this particular information can be the body part, this particular information can frame a good conclusion. So whenever you are reading any information ना, आपने उसको वहीं पे figure out करने की कोशिश करना है. This is in no way I'm saying कि one day practice आपको एक दिन में आ जाएगा, but yes, slowly practice करोगे तो in 10-20 days you will see कि आप एग्जाम पढ़ते पढ़ते न्यूज़पेपर को, एडिटोरियल को, you will be able to frame the essay, frame the précis, frame the letter. précis तो थोड़ा मुश्किल होगा, but yes, frame the précis, frame the letter in your brain, right. तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है और एडिटोरियल को यूज करना है. So this is what how you can use the brain while studying. Then mistakes to avoid. First mistake is to not have a flow in your essay, in your letter or even your précis. If especially in the précis case, I would say randomly you are writing कि आपकी पहले की 3 lines and the next 3 lines are not making any connection, I'm sorry to say you are losing marks. If the answer that you are writing in the essay or in the letter part, the point itself are not in harmony, you are not getting marks. So the point might be very strong, but also the flow need to be maintained. What kind of flow it can be? It can be chronological flow. If the question is like discuss the issues and the solution for those potential issues, so what you can do, पहले it is directly telling you what to write कि problem लिखो, then solution लिखो. Or it can be, it is not giving you any dimension. It is giving you directly like discuss the manufacturing sector in India. You don't know the dimension. तो उस केस में you can use certain structure. एक मैं आपसे डिस्कस करूंगी अभी नेक्स्ट स्लाइड में. You will have to use that and you will have to write your or frame your answer, right? But flow need to be maintained.
the examiner should know कि what he is reading and from this point to that point why he came there. तो उसके लिए easiest is you maintain the priority order. Let's say I'm asking you कि what is the problem with agriculture, जो सबसे ज्यादा burning problem है, write it at first, then कम impact वाली second, then even lesser impact third, fourth, and 4-5 point के बाद you will like less maintain वाली non relevant को हटा देना, less relevant वालों को you will have to keep at low priority. If you go with this order, you will not the mistake of losing the flow or having no flow in your answer. Then mistake of harsh criticism in the body part, even in the body part, in the essay part, conclusion part पे, introduction part पे, wherever you are presenting a very, I would say कि harsh criticism toward government or government bodies, you are not doing your job of writing a good essay or good letter. तो आपको positive negative लिखने हैं, but they should be very mild, they should not be overly critical. You will have to show your logical and analytical skill here. आपका पॉलिटिकल स्टैंड नोबडी इज गोइंग टू आस्क, तो वो आपने प्रेजेंट भी नहीं करना है. दिस पॉइंट यू आल्सो नीड टू कीप इन माइंड. ऐसा नहीं कि दे आस्क यू कि व्हाई पॉलिसीज आर नॉट वर्किंग, यू आर सेइंग कि बिकॉज मोदी इज इन पावर. तो ऐसी पॉइंट आपने नहीं लिखने हैं. आई होप कि ये मिस्टेक आप करते भी नहीं, बट दोज ऑफ यू हु वर like confused or first timer, I have told you this point also. Then writing point as you please, ये point मैंने अभी भी डिस्कस कर लिया. Whenever you are writing the answer, have a structure in your brain. Your point again should be like कि ये तो बेस्ट आंसर होता, घर में जाके पता चला no marks you have gotten. Why? Because jumbled थे. Examiner have to filter out the information. तो ये केस नहीं होना चाहिए. Directly the answer the examiner is asking, you should directly give him. ठीक है, तो this will help you to get very good marks in there. So this is basically some mistakes. But now coming to the question कि then how we can write. So whenever you are going for the essay, I'll discuss. देखो प्रेसी के लिए तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, but essay के लिए I would say whenever you are doing, divide your essay in introduction, body and conclusion part. Introduction में what you will have to write. You don't waste your time thinking about किसने वो quotation बोली थी, what was that, what was there. No. Opening up के लिए देखो, if they are directly asking you something, give them the answer. If not, then the best is you provide some background. Now this background can be current, this background can be static. If the question is related to कि how we can improve the again sports infrastructure in India, you do know कि we just have won a lot of medal and we are planning to win 50 medal in Olympics. तो उसी की लाइन में क्वेश्चन है, तो you will address that particular point जो कि अब हिस्ट्री बन चुका है, and you will write your essay. If the question is related to something that already happened and then the question is there, तो उस केस में आपने कैसे करना है. Let's say the question is related to your wetlands. So Ramsar Convention you know, तो although आएगा नहीं इतना specific, just for the example they are asking you about कि how wetland can be improved, society के question पूछ ले, तो you do know कि Ramsar Convention was held in this area and according to this wetlands are the bodies, उनको थोड़ा सा preserve करना है. तो आप थोड़ा सा उसमें background static सा दे दोगे नीचे में, right? तो ऐसे आपने introduction लिखना है. बहुत ज़्यादा time waste नहीं करना कि किसने क्या बोला था, कौन सी date में बोला था, कौन सी magazine में बोला था. नो. देन कमिंग टू द बॉडी पार्ट, आपको दो चीजों पे ध्यान देना. अगर आप इन दो चीजों पे ध्यान देंगे, एवरीथिंग एल्स विल फॉल इन प्लेस. एंड आपको बहुत कम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसके बाद अपने ऐसे की बॉडी को इंप्रूव करने के लिए. माइंड यू, बॉडी ही सबसे ज्यादा स्कोरिंग पार्ट है. तो यहाँ पे यू विल हैव टू फोकस ऑन द स्ट्रक्चर एंड फोकस ऑन द फ्लो. जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज. So you will have to focus on the structure and you will have to focus on the flow. What does structure means? तो देखो, whenever we are talking about the structure, तो आपके जो point होने चाहिए, that should be very strong, that should be relevant. तो आपने ऐसे point ढूंढ के लिखने हैं. Then coming to the flow means again I have told you, logic should be maintained. Examiner should know कि what he have just read and where he is going. So you will write something like कि okay, these are the problem we have discussed. Now coming to the potential solution. तो आप ऐसे करके solution उसको present करोगे. But he or she should not be in for surprise. He or she should have idea कि what they are reading. Then coming to the conclusion. Conclusion के लिए best I would say is your conclusion should be positive and सोल्यूशन ओरिएंटेड. तो उसके लिए यू कैन ऑलवेज गो अहेड एंड गिव अ वे फॉरवर्ड. बट यहाँ पे बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक, नॉट इवन आइडियलिस्टिक, आई वुड से बहुत ज्यादा न्यू पॉइंट फैक्ट्स के साथ आपने प्रेजेंट नहीं करने, उसको आपने अवॉइड करना है. दैट शुड बी द पार्ट ऑफ योर बॉडी. कमिंग टू द लेटर, तो देखो इनफॉर्मल लेटर इजी होते हैं, लेकिन फॉर्मल लेटर के लिए आई वुड से कि फर्स्ट यू कैन गो अहेड एंड वॉच दिस वीडियो बाय नरवीर सर. ये सर ने ली थी, राइट?
बट अगर नहीं करना चाहते हो तो दिस इज द स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें आपके लेटर में आनी चाहिए। यहाँ पे इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्लास नाबार्ड की होगी ऑन फ्राइडे, वहां पे नरवीर सर विल टेक द क्लास। नरवीर सर आपको सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे रिलेटेड टू, आज मैंने पूरी डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश को ले लिया, सर विल टेक ईच एंड एवरी कंपोनेंट कि ऐसे हाउ टू स्कोर गुड, प्रेसी हाउ टू स्कोर गुड, लेटर हाउ टू स्कोर गुड। तो आपने उस वीडियो के लिए भी थोड़ा सा वेट करना है, राइट। सो दैट विल बी इट फ्रॉम माई साइड। अब आ जाते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे, जो हमने पूछा था कि मैं टारगेट क्या करूं इंग्लिश में, राइट। तो इंग्लिश के लिए देखो, द टारगेट आई विल गिव यू इज, इफ यू आर ओनली हियर टू प्लान फॉर द और टू क्लियर द फेज 2, इस केस में आपके 60+ मार्क्स विल बी इनफ। बट इफ यू आर प्लानिंग टू क्लियर द नाबार्ड अल्टीमेट नाबार्ड एग्जामिनेशन, उस केस में आप अपना टारगेट स्कोर रखो 70 से 75। अगर आप इतना स्कोर कर लेते हैं तो यू विल बी एट अ वेरी डिसेंट पोजीशन टू स्कोर वेरी वेल इन योर फाइनल सिलेक्शन, राइट। तो ये आपका स्कोर आपने टारगेट करके चलना है। आई होप अब मैंने आपको सारी डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर कर दी है। इफ देर इज एनी अदर डाउट, डू लेट मी know that in the comment section. I'll try to take your query from you. If you have any doubt, you can always contact us, you can write to us, you can call us, feel free to do so. All right, so that will be it.